ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाना कोई, ओ तेरा मर्म न जाना कोई। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाना कोई, ओ तेरा मर्म न जाना कोई। भारत माँ की देख दुर्दशा, भारत माँ की देख दुर्दशा, भीतर भीतर रोए रे, ए भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाना कोई, ओ तेरा मर्म न जाना कोई। लूट रहे थे चोर बजरिया, तूने बचाई आके नगरिया रे। लूट रहे थे चोर बजरिया, तूने बचाई आके नगरिया रे। उसके बदले क्या कुछ पाया, उसके बदले क्या कुछ पाया, गाली पत्थर तो तेरा दर्द न जाना कोई, ओ तेरा मर्म न जाना कोई। वेद ऋचाए ऐसी भी सारी, दोहे गाते पंडे पुजारी रे। वेद ऋचाए ऐसी भी सारी, दोहे गाते पंडे पुजारी रे। वेद का भेद खोल दिया तूने, वेद का भेद खोल दिया तूने, देव की वाणी बोल, तेरा दर्द न जाना कोई, ओ तेरा मर्म न जाना कोई। नारी का सत्कार कहाँ था, पढ़ने का अधिकार कहाँ था रे। नारी का सत्कार कहाँ था, पढ़ने का अधिकार कहाँ था रे। गंगा किनारे देख के दुखिया, गंगा किनारे देख के दुखिया, फूट फूट कर रोए, तेरा दर्द न जाना कोई, ओ तेरा मर्म न जाना कोई। हमने उसकी एक न मानी, क्या कहता है सार न जानी रे। हमने उसकी एक न मानी, क्या कहता है सार न जानी रे। आई अंधेरी रात दिवाली, आई अंधेरी रात दिवाली, सूरज दियाल को, तेरा दर्द न जाना कोई, ओ तेरा मर्म न जाना कोई। आज अमर है उनकी निशानी,
रोते हैं सुन ऋषि की कहानी रे, आज अमर है उनकी निशानी, रोते हैं सुन ऋषि की कहानी रे। नहीं विचारा अभी सुधारा, नहीं विचारा अभी सुधारा, पछताए क्या हो, तेरा दर्द न जाना कोई, हो तेरा मर्म न जाना कोई। ऋषि युग के पंथी रे। I'm really sorry. मैं इस गीत से बहुत भावुक हो जाती हूँ and sometimes it shows in my voice. I'm sorry. It's not my best delivery. बहुत बहुत धन्यवाद बहन कैथरीन, न्यूजीलैंड से हैं और आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं। जोरदार तालियां बहन कैथरीन के लिए, उन्होंने दिल से। चलिए, now I'll invite Bhuvnesh ji to introduce some of the dignitaries on the stage. Bhuvnesh ji. Check, check. Thank you. Namaste, Om. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to welcome on the stage His Excellency, the ex-President of the Republic of Mauritius, Mr. Prithviraj Singh Rupon, and First Lady Mrs. Sukyata Rupon. It is our honor that they're here all the way from Mauritius, and I understand from His Excellency this is his first day here in India. They just landed this morning, and it's the very first time. He told me he's a follower of Maharishi Dayanand and the Arya Samaj principles, but this is the first time he's gathered here in a Sammelan, in an Arya Samaj activity outside Mauritius. So we warmly welcome you. His Excellency, for your knowledge, we have representation from over 30 nations, and I have the honor to welcome them all. And one of the largest delegations are joining us here today at this International Sammelan to commemorate the 150 years of Arya Samaj is Mauritius itself. So may I request you, His Excellency, to please come and address the audience and give them congratulations on behalf of Mauritius. And of course, it is a great honor for you and the First Lady to be present here to commemorate 150 years of Arya Samaj. May I request you to please come address the audience. Please give them a warm welcome. धन्यवाद रूपनेश जी। सभी को मेरा नमस्कार। All dignitaries, swamis, acharyas, pandits, and the whole Arya Samaj family. It is my privilege and honor to be participating amongst you in the 150th anniversary of the foundation of Arya Samaj. And it is my first encounter with this Sammelan. And I wish to say thank you to all the organizers for the invitation. In fact, I'm here more to listen than to talk, because there is so much to learn from all of you, all those who have been serving the Samaj from different countries, to learn from all Swamis,
all learned persons in Vedas, but it is also my duty to say thank you to all those behind this organization. I know that there are many Mauritians participating. I see Mr. Ramdani on his way here. I wish to greet him and say how pleased I am to be here in this big family. धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे. Thank you, Your Excellency. Can I get everyone to be a little bit more joyful? After eating lunch, I think you should have more energy to give a round of applause. One more time, please. Thank you. हम सुबह से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं. Of course, इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ा लेट हो जाता है और आप सबसे क्षमा याचना करते हुए हम मूव फॉरवर्ड करते हैं. हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से और फिजी से और थाईलैंड से डिग्नेटरी आए हुए हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं. मैं दो तीन बातें कह कर उनको आमंत्रित करना शुरू करता हूँ. आई इनवाइट ऑल द रिप्रेजेंटेटिव वन बाय वन. But before that, I just reiterate what Bhuvnesh ji told in the morning. Please be precise. आप जो भी प्रोटोकॉल हमको होता है उसको आप सिर्फ एक लाइन में ऑब्जर्व करते हुए आप सीधे अपनी बात पे आएँ. और मेरी आपसे पर्सनल हिदायत है कि प्लीज़ आप ये बताएं कि आपका विज़न क्या है, आपकी कंट्री का विज़न क्या है इन दो पिलर्स के लिए, सो दैट कि सम डूएबल कैन बी डिस्कस्ड. We all are very well versed in Arya Samaj philosophy and Arya Samaj सिद्धांत. लेकिन अगर हम थोड़ा सा डूएबल में बात करें कि हम क्या सोचते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, what is moving from here onwards. So the two pillars we are talking today is Sunday Satsang reform and governance and standards. So first of all, because I'm not following the list for the beginning because Pandit ji need to go somewhere. So can I call Vedic Pratinidhi Sabha and Arya Samaj of Australia President Pandit Avindra Prasad ji to please come forward and show us what you got for us today. Can I get a round of applause for Pandit Avindra ji? Thank you. धन्यवाद आचार्य योगेश जी. उपस्थित सभी महान भाव देवियों सज्जनों, आप सभी को नमस्ते और विशेष अभिनंदन है. Ladies and gentlemen, I wasn't given much notice, I must say, but I did take the opportunity to make some notes while I was in the earlier this morning session. So it is both an honor and a responsibility to stand here before you today at this esteemed Arya Sammelan, united by our shared commitment to truth, progress, and the eternal values of the Veds. Ladies and gentlemen, the Sunday Satsang has long been the spiritual heartbeat of our Arya Samaj. It is where we gather not only to chant mantras and listen to parvachans, but to reaffirm our dedication to dharma, community, and self-improvement. Yet, as times change, so must our methods. Reform is not a rejection, it is rejuvenation. It is our duty to ensure that the satsang remains relevant, engaging, and transformative for every generation. Today, I humbly propose a few reforms for discussion, consideration, whatever it may be, to breathe new life into our Sunday gatherings. And I know there are a lot of speakers and we are running out of time, so I'll be very brief, give you some dot points and move forward. Firstly, I suggest that we make our satsangs more inclusive and interactive. Encourage open discussions after the parvachan where attendees, especially our youths, can ask questions, share reflections, and respectfully challenge ideas. Second is introduce thematic satsangs. Each month, let us dedicate one Sunday to a theme, be it Vedic science, women in Vedas, environmental dharma, or ethical living. Thirdly, blend tradition with creativity.
While we must preserve our Vedic chants and bhajans, let us also invite musical talent from within the community to compose new devotional Vedic songs inspired by the Vedic teachings. Fourthly, engage youth through leadership. Let's create a rotating youth panel to help plan and lead parts of the satsang. Let them present short talks, lead group discussions, or even organize services, projects. When youth lead, they stay. Fifthly, strengthen community bonds. After satsang, let us host informal chai, sammelans, spaces for fellowship, networking and support. Arya Samaj is not just a philosophy, it is a family. Let us nurture that feeling. And with technology, sixthly, I will say, embrace technology. Record and share satsang highlights online. Create a WhatsApp group or a newsletter to share weekly insights, upcoming topics, and community updates. Let our reach extend beyond the walls of our Arya Samaj mandirs. And with the seventh recommendation, I would suggest that we reconnect with the 10 principles. Let us revisit one of the 10 principles of Arya Samaj each week, not just as a reading, but as a live discussion. How do we apply these principles in today's world? Let us make them real. Ladies and gentlemen, I think reform is not a criticism, it is a celebration of our potential. And Swami Dayanand Saraswati Ji himself was a reformer, a visionary who challenged stagnation and called us to rise. Let us honor his legacy not just by repeating his words, but by living his spirit. And let the Arya Samaj Sunday Satsang be a place where minds awaken, hearts connect, and lives transform. And then, ladies and gentlemen, the second topic of the discussion is the standards and governance. I must say that the Arya Samaj governance is rooted in Vedic principles, emphasizing democratic decision-making, moral integrity, and social reform. Its standards are guided by the tenets of truth, monotheism, and service to humanity. We should actually base our basically standards and governance on these principles. The democratic decentralized Arya Samaj institutions are typically governed by elected bodies such as the Arya Pratinidhi Sabha at regional and national levels. These bodies oversee religious and educational activities, community service initiatives, financial and administrative matters. And the local Arya Samaj operate the Arya Samaj mandir, satsangs, etc. in an independent way, but align with broader Arya Samaj principles. So I would recommend that we are guided by the 10 principles of the Arya Samaj in whatever we do: the standards, governance, rituals, education, and reform. Thank you very much, ladies and gentlemen. आपकी तालियां बता रही हैं कि आपने अच्छे से खाया नहीं है आज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मच पंडित अविंद्रा जी आपकी इंसाइट के लिए. और आप ये आई वुड से कि आपसे बहुत पुराने से हम जुड़े हुए हैं और आप सिडनी में रहकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. अब मैं चाहता हूं कि अगले जो हमारे कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाने से पहले आई रियली विश टू सी इफ पीपल आई एम कॉलिंग अपॉन आर हियर इन द हॉल so that they can come to the stage and grace the stage for us. श्री जोगेंद्र खट्टर जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पंडाल में हैं तो आप आगे आ जाइए, ऊपर आ जाइए प्लीज़. श्री कृपाल सिंह आर्य जी, श्री योगेश गुप्ता जी, श्री सुधीर सूद जी, श्रीमती वीना आर्य जी और श्री सुरेंद्र गुप्ता जी. हमारे बीच में डॉक्टर विनय जी तो उपस्थित हैं ही, आपका स्वागत है. और उसके साथ ही मैं बुलाना चाहता हूं आचार्य आर्यशा जी को. प्लीज़ आ जाइए ऊपर आप. और अगर डॉक्टर कविता वाचक नेवी जी यहाँ पर हैं तो वो भी आ जाएं ऊपर.
आप सबका स्वागत है। कृपया हमारे कीनोट स्पीकर का आप ताली द्वारा स्वागत कीजिए। अगर विद्या भूषण वर्मा जी आगे, धन्यवाद, स्वागत है आपका। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र सैनी जी हमारे बीच में है। स्वामिनी मैत्रेय जी हमारे बीच में है। मैत्री जी नहीं है? अच्छा। साध्वी उत्तमायति जी हमारे बीच में है। और श्री मनीष भाटिया जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप भी आ जाइए। चलिए अब कंट्री रिप्रेजेंटेटिव को फिर एक बार सुन लेते हैं। हमारे बीच में एपीएसए के जो आर्यपति सभा ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसकी प्रचार कमेटी के प्रेसिडेंट हैं पंडित शिरीष जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया आइए और हमारा अपना उद्बोधन दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद पंडित जी। उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। अवश्य आज हम सब के लिए एक खुशी का समय है, एक शुभ बेला है जब लोग हम यहाँ पर सब मिलकर एक भव्य कार्य में भाग लिए हुए हैं। और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, जितने लोग भी आए हैं, जितने लोग भी इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक सदस्य हूँ, प्रचार कमेटी का, जिसे पंडित जी कहे हैं, मैं प्रधान हूँ। हमारे पास करीबन 200 सदस्य हैं और हर रविवार को हमारा सत्संग होता है। और जितने भी हमारे आर्य पर्व है उनको भी हम बड़े भव्य रूप से मनाते हैं, बड़े रूप से हम लोग मनाते हैं प्रति वर्ष। उसके साथ साथ में वार्षिक तौर पर एनुअल के रूप में हम लोग शिविर भी करते हैं। बच्चे आते हैं वहाँ पर और हम लोग बच्चों को विशेष यज्ञ करने, दैनिक यज्ञ करने और वेद का जो ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो करीबन हर साल 20-25 बच्चे और बड़े लोग भी आते हैं, जिनको हम लोग शिक्षित करते हैं। इसके साथ साथ हमारी योजना ये है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो सत्संग है उसको और मजबूत बनाएं। कोशिश करते हैं और ज़्यादा लोग आएँ और हमारा जो कार्यक्रम है उसमें और भी परिवर्तन लाएं, ताकि और हम लोग उसको भावी रूप से, बड़े रूप से और सत्संग की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। हमारे समाज में 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं और उसके साथ साथ में महिलाओं का एक दल है, विमेंस ग्रुप। इसके साथ में नवयुवकों का भी एक ग्रुप है, एपीएसए यूथ ग्रुप है। सब हम लोग मिलकर समित रूप में काम करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे विशेषकर कि सत्संग को और मजबूत बनाएं, ताकि और लोग आएँ और कार्यक्रम को हम लोग भली भांति संपन्न कर सकें। उसके साथ साथ में हमारे शिविर के अंतर्गत जो वेद का इंग्लिश एडिशन है, अंग्रेजी में जो लिखी हुई वेद है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को हम लोग वेद देते हैं देखने के लिए, देखें उसमें से कुछ शब्दों को निकालें, वो जानते हैं, फिर वाक्यों को निकालें, उसके बारे में हम लोग फिर बातचीत करते हैं। तो हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि विश्व को आर्य बनाना है तो हमको वेद का जो शिक्षा उसके और बड़े रूप से हमको योजित करके और उसका प्रचार करना है। सुनने के लिए भी को धन्यवाद, सादर नमस्ते, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद। आपने हमारे जो एलोकेटेड टाइम है उससे भी कम समय में अपनी बात को पूरा रखा और बड़े सारगर्भित ढंग से प्रिसाइजली आपने अपनी बात को रखा। हम टाइम शॉर्ट चल रहे हैं सुबह से लेकर, तो आपसे विनती है, सभी से विनती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो बोल के गए हैं दोनों व्यक्ति उन्होंने टाइम एक्सीड किया है, आपके लिए ये कमेंट नहीं है, पर सजेशन है बार बार, क्योंकि एमसी की जॉब थोड़ी सी टाइट चलती है और वो हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि 3-4 मिनट हम कंट्री रिप्रेजेंटेटिव को दें, अपनी बात रखें प्रिसाइजली कि व्हाट टू बी डन, व्हाट दे थिंक टू बी डन इन दोज 2 स्ट्रेटेजी पिलर्स। नाउ आई कॉल अपॉन टू श्री जितेंद्र शर्मा जी फ्रॉम विक्टोरिया आर्य समाज to come upon the stage and tell us what do you got for us. Thank you. एक बार तालियों द्वारा स्वागत कर दीजिए प्लीज। ओम नमस्ते। हमारा जो विक्टोरिया समाज समाज पूरा ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है, उसका नाम है विक्टोरिया, और जो वहाँ पर काफ़ी हिंदू लोग रहते हैं। हमारा जो
in Victoria itself, there are around 4 Arya Samajas operating, और sort of हमारा है intention is to make this one is a sort of a regional head समाज. For the time being, हमारा जो grassroots का activity, which is aligned to the theme also, is हम अपना सत्संग non structured approach से करते हैं. हमारा सत्संग में हमारा जो टारगेट है वो हमारा जो ग्रास रूट प्रॉब्लम है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली जो डिप्रेशन और मेंटल स्टेट का जो रिलेटेड इश्यूज है, और दूसरा चीज़ है जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, तो उस पर हमारा 3-4 साल से एक्चुअली 8-9 ईयर्स से काम हो रहा है. उसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक बड़ी सी ज़मीन खरीदकर वहाँ योगा एंड मेडिटेशन सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट का निर्माण किया हुआ है, और उस पर काम हो रहा है. जो द स्पेसिफिक नीड है हमारे वास्ते, जो कि हम अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, फिर अपना जो प्रोसेस जो है उसको डिफाइन करके टू डिलीवर अ सोल्यूशन, तो उस पर हम स्ट्रक्चर्ड वे हमारा समाज काम कर रहा है. हम थोड़ा चीज़ नॉन वैदिक बट मोर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एसोसिएट होकर काम करते हैं, और हमारा जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ डिफाइंड है. वी डोंट आस्क कि आज ये प्रेसिडेंट है तो कल अनदर प्रेसिडेंट शुड बी एबल टू कम इन स्मूथली, और समाज फंक्शन शुड कंटिन्यू. तो उस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और हम इनोवेटिव वे थोड़ा बहुत सत्संग रन करते हैं. कभी हमारा सत्संग में योगा क्लास रखते हैं, कभी हम आउटसाइडर्स को इनवाइट करते हैं, कभी कभी हमारा समाज का प्रोग्राम थोड़ा इनोवेटिव इन अ वे कि हम मेंस कुकिंग कंपटीशन, अभी और कुछ भी इसी तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और एक और जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपने रीजन में हमने नोटिस किया है कि हम जो यज करते हैं वो यज को हम स्पिरिचुअल नहीं बना रहे हैं, हम मैकेनिकल यज कर रहे हैं. जो कुछ बोलना है अच्छी तरह से बोलते हैं, बट उसका समझ लोगों में नहीं है, तो उस पर हमारा भी काफ़ी काम हो रहा है. हम हमारे लोग यश की स्पेसिफिक ट्रेनिंग ले रहे हैं आचार्यों के द्वारा, तो उस पर मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा. मे बी इन अ फ्यूचर सत्संग, फ्यूचर कॉन्फ्रेंस. थैंक यू. जी धन्यवाद जितेंद्र शर्मा जी, आपके इंसाइटफुल देने के लिए. अब मैं एक और हमारे बीच में हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम न्यूजीलैंड, पर उसके बीच में अगर श्री रवनील कुमार जी फ्रॉम फिजी अगर वो हॉल में हैं, आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए. रवनील जी फ्रॉम फिजी एंड नरेंद्र पांडे जी फ्रॉम थाईलैंड. अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आइए थाईलैंड के रेप के रूप में. अब इस बीच में हम ऑस्ट्रेलिया से थोड़े से और दूर चलते हैं. जैसे कि पहले सुबह मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया में आर्य समाज है वो फिजी से होते हुए, और आई डोंट नो न्यूजीलैंड आया या ऑस्ट्रेलिया पहले आया, ऑस्ट्रेलिया पहले आया. सो देयर वी गो. तो अब न्यूजीलैंड में भी जो आर्य समाज आया वो फिजी से आया, और हमारे बीच में हमारे भाई अतेंद्र लखन जी हैं. मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आइए और अपने आपके पास हमारे लिए क्या है, आपके पेंडोरा बॉक्स में प्लीज़ ओपन कीजिए. आप सभी को सादर से प्रेम नमस्ते. मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहता हूँ. हम सब आर्य समाज फैमिली से है और संडे सत्संग करते हैं. हम अपने छाती पर हाथ रखकर एक बात सोचे कि जो हमारा सत्संग होता है संडे का, सब एक यूनिसन में हो रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी विभिन्न आर्य समाज है, जो कोई भी पुरोहित बैठता है उसके मन में जो मंत्र आवे वही बोल कर चला जाए. प्रॉब्लम हमारे में ये है, आप ईसाई लोग के कहीं जाओ तो एक यूनिसन में उनका प्रेयर्स होगा, चाहे उसके मरगी के समय या शादी विवाह के समय या संडे के उनका जो चेच होता है. हमारे समाज में, आर्य समाज में
यद्यपि कि हम न्यूजीलैंड में ओकलैंड आर्य समाज में एक स्थायी रूल्स ला चुके हैं और उस पर हम अपने पुरोहित लोग को ट्रेन कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2 ठाट से विशेष पुरोहित है जो एक ही तरह से यज्ञ करते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि कि हम फिजी से आए हैं और फिजी से विशेष यज्ञ की पद्धति को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर हम एक बात बहुत जोर तोर से कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी यज्ञ करे, हम नित्य यज्ञ करते हैं रविवार को, उस पर हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, नहीं कि हम आए हुआ अगड़म बगड़म स्वाहा बोल के और यजमान को बैठाकर चला भेज दे, कोई मतलब नहीं रखता उसका। यज्ञ सही तरह से होना चाहिए। और हमारे वहाँ पर हम एक चीज़ और करते हैं, अपने भजन मंडली को 20 मिनट का समय देते हैं, 3 या 4 भजन और ठाट से गाते हैं। उसके बाद में एक मस्ट हम करते हैं कि हमारे पास हमारे समक्ष में 2 लेनर विद्वान हैं, बहन उर्मिला जी यहाँ बैठी हुई है और भाई लोराज कुमार वहाँ बैठा हुआ है। उनको हम कम से कम 40 मिनट का समय देते हैं कि वेद के गहराइयों में हमारे समाज के मेंबर्स को ले जाए, ताकि हम समझ सके कि हमारे समाजी क्यों हैं। बोलने वाले तो हम बोल देते जाकर, वो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। जब सवाल उठता है कि वैदिक धर्म क्या बताता है, आर्य समाज आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो 90% क्राउड को समझ में नहीं आता है कि क्यों संडे सत्संग में जाते हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यद्यपि कि हम फिजी से बहुत लोग यहाँ पर है, फिजी में विशेष पद्धति का सेटअप हुआ है, वो मैं दुनिया में कहीं पर जाता हूँ उसी तरह का हवन यज्ञ होता है। बट प्रॉब्लम, ये दुख की बात है हमारे आर्य समाज के लिए कि एक यूनिसन में यज्ञ नहीं होता है। कोई भी पुरोहित बैठता है, उसके मन में जो भी मंत्र आ गया, जो भी उसके दिल में आया कि मैं ये करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा, वो करते। देखो, सम्मिलित रूप में जो संडे सत्संग होता है उसमें एक यूनिटी होना चाहिए, एक ही आवाज़ से एक ही मंत्र का, एक ही तरह से हम मंत्र का उच्चारण करें और सारा संसार में हम कहीं पर भी जाए, जो हमारा जो सम्मिलित रूप में संडे सत्संग हो उसमें एक ही तरह का मंत्र हो, ना कि हम कहीं और जाए तो कहीं और मंत्र हो, कहीं और जाए तो कहीं और मंत्र हो। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। और मैं एक बार विनय आर्य जी से कहा था, मैं पुनः इस सम्मेलन कमेटी को, जो आयोजक कमेटी के, इसको मैं अनुरोध करूँगा कि क्यों नहीं 2013 में मैं आग्रह किया था कि क्यों नहीं एक यज्ञ पद्धति बनाया जाए कि सारे संसार में कोई लोग हम कहीं पर जाए, एक ही आधार पर यज्ञ हो और उसको हम पालन करने की कोशिश करें और उसको हम लेकर आके जाए। नहीं तो फिर जो हम पौराणिक मत वालों को बहुत खंडन करते हैं कि एक आया अपना मंत्र बोल दिया, एक आया अपना मंत्र बोल दिया, हम उसी ओर जा रहे हैं। वी हैव टू रियली थिंक, where do we want to go? And this is my a brief statement. I wasn't prepared for this, but I would like to say all this because I always think about this thing, and I hope Sarvadeshik Pati Sabha helps everyone to get into a unity whereby we can do things. There's another problem happening now. अब एक दिन का तिथि सुबह 12 बजे या कितना बजे शुरू होता है, अब शाम को ये करते तो दूसरे दिन के लिए हम आहुति देते हैं। अभी दूसरा दिन का तिथि आया नहीं, हम कैसे आहुति देते हैं? तो सब उल्टा सीधा हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक लाइन से सब चीज़ हो तो उसी में हमारी भलाई होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विल टेक योर suggestions and very constructive suggestions and criticism which you have, will take that into due consideration. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Now moving on to the keynote speakers. I am very delighted and very honored. ये मेरा बहुत सौभाग्य है। We have a very learned speaker among us, Dr. Vinay Vidyalankar ji. So विनय जी की इस सभा में इंट्रोडक्शन तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। He doesn't need, he is the one who is coordinating everything. He is the one who sent today morning that you are doing this thing. So he is organizing everything. We are very thankful. I happen to know him since 2015 when he visited Houston Arya Samaj for a Mahasammelan. So I'll request Vinay ji to come and give the keynote speech today. Welcome Vinay Vidyalankar ji with a round of applause. धन्यवाद विनय जी।
इस समय 15 मिनट है। विजन ऑफ 2050। ओम। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसुः यज्ञं वष्टो धिया वसुः। ओम शांति शांति शांति। सार्ध शताब्दी आर्य महासम्मेलन विश्व के अनेक देशों में वेद की ज्योति को जलाने का कार्य करने वाले हम सभी ऋषिवर के सैनिक हमारे सम्मुख विराजमान हैं और मंच पर विराजमान आपके प्रतिनिधि के रूप में उन देशों में जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, हमारे सभी अतिथिगण, हमारी पूज्या साध्वी उत्तमायती जी, बहन आर्यशा जी, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, हमारा सौभाग्य है कि आर्य जगत के बड़े बड़े विद्वान इस सभागार में हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वेदपाल जी आचार्य, प्रोफेसर ज्वलंत शास्त्री जी, ब्रह्मचारी राजेंद्र आर्य जी, स्वामी वेदानंद जी, मैं सभी को सादर नमन करता हूँ। जिस उद्देश्य से ये सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में आप सब ने इतनी दूर की यात्रा करके, लंबी यात्रा, आप कोई 20 घंटे, कोई 30 घंटे, 35 घंटे तक के आप लोग लाइट में आए हैं। मैं आपको इस समर्पण को नमन करता हूँ कि आप महर्षि के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। आज का जो हमारा ये सत्र है, जैसा कि उसमें लिखा कि विजन 2050, 2050 तक आर्य समाज का क्या स्वरूप हो, कैसे हम उसको आगे ले जाएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 5000 वर्ष के अंधकार के बाद वैदिक सत्य सनातन सिद्धांतों को मानव कल्याण के समक्ष कल्याण के लिए प्रस्तुत करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर पूरे विश्व में जो आयोजन हुए, उनका समापन इस कार्यक्रम में है। आर्य समाज के 150वें वर्ष का जो प्रारंभ मुंबई से हुआ, उसका भी यह एक बड़ा कार्यक्रम है। पर हम इन कार्यक्रमों को बनाकर क्या प्राप्त करें और कैसे हम अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाएं। जिस ऋषि दयानंद जी की मूल भावना, अभी मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति जी बैठे मुझे यही पूछ रहे थे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, वेदों का जो इंटरप्रिटेशन है उसको आप कैसे रिसर्च कराते हैं, कैसे क्या करते हैं। उन्होंने थोड़ी देर में मुझसे ये पूछा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद की विद्या जिसके लिए केवल अध्यात्म में प्रयोग कर रहे थे, यज्ञ में विनियोग कर रहे थे, कर्म कांड में सीमित किया जा रहा था, और दूसरी तरफ विज्ञान का विकास हो रहा था। विज्ञान के बड़े बड़े ऊंचे साइंटिस्ट कहते थे कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज रिलीजन रिप्लेस्ड बाय साइंस। धर्म को विज्ञान ने समाप्त कर दिया, दूसरा स्थान विज्ञान का हो गया, विज्ञान का ही युग है। ऋषि दयानंद जी को यह श्रेय जाता है मातृशक्ति बंधुओं। उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म अलग अलग नहीं है। धर्म और विज्ञान को अलग देखने का जो दृष्टिकोण है वो किसी फल तक नहीं ले जाता। स्वामी जी ने कहा कि धर्म आंख है और विज्ञान उसको ले जाने वाला, शरीर की यात्रा करने वाली हमारे पैर हैं। अर्थात विज्ञान से हम चलेंगे, पर उस चलने को कहां जाना है, कैसे हमारा कल्याण होना है, कैसे विश्व में शांति होनी है, सुविधाएं शांति दें या सुविधाएं आत्महत्या तक ले जाएं। ये आप दो स्थिति जगत में देख रहे हैं। अनेक देशों का जब हम डाटा देखते हैं तो वहां पर जो रिच कंट्रीज हैं, सुसाइड रेशियो ज्यादा है। सुविधाएं ज्यादा होने पर यह आदमी मरना क्यों चाहता है? ऐसा इसलिए होता है, ऋषि जी ने कहा कि जीवन रूपी नदी के दोनों किनारों को एक विज्ञान के द्वारा प्रगति का किनारा, जिसे हम कहते हैं अभ्युदय, दर्शन की भाषा में जिसे अभ्युदय कहा जाता है, और दूसरा किनारा आत्मिक कल्याण का, जिसे निश्रेयस कहा जाता है।
और ये संसार में हमारी यात्रा अगर एक किनारे वाली है, केवल अभ्युदय अर्थात उन्नति, धन, संपदा, सुविधाएं, विकास, साधन ये हैं, तो भी यात्रा सफल नहीं होगी। और यदि हम इन सबको छोड़कर भाग जाएं, पलायन कर दें, धर्म का नाम इसे कह दिया जाए कि नहीं सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, ये सब क्षणिक है, सब दुख है, तो वह भी कल्याणकारक नहीं है। क्योंकि एक मार्ग जीवन का नहीं है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। इसका सुंदर दर्शन श्री दयानंद जी ने दिया है और उस दर्शन को लेकर हमारे भारत भूमि से पूर्वज इन उन देशों में, फिजी हो, सुरिनाम हो, त्रिनिदाद हो, मॉरिशस हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जहां पर आर्य समाज पहुंचा है, हमारे पूर्वज ऋषि दयानंद की दृष्टि को लेकर गए और उन्होंने वहां क्रांति की। ये उसी का एक प्रतिफल है कि आप इतने 35 देशों के प्रतिनिधि हमारे बीच बैठे हैं। उन देशों में ऋषि दयानंद की विचारधारा को ले जाकर जो मानव कल्याण का कार्य किया गया है, जैसा कि हमारे कई प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की कि हम किस प्रकार से उसे आगे ले जा पाएंगे, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, उसको हमें रखना है। समाधान दिया कि हम घरों में यज्ञ को ले जाएं, समाधान दिया कि हम उसके विधि को ठीक करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं पानी की बोतल होगी, वो आपके पास है इसमें वाटर है इसमें, अविनल जी? यस यस। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम अपने जीवन में जीवंतता कितनी रखे हुए हैं, चाहे सिद्धांतों की जीवंतता हो, चाहे उसके जो अंग हैं, यज्ञ है, योग है, संध्या है, स्वाध्याय है, प्रतिदिन का व्यवहार है, संस्कारों का समावेश, इनको हम कितना जीवंत रखे हुए हैं। आज अगर आप लोग प्रातःकाल यज्ञ में सम्मिलित हुए होंगे तो यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी ने कहा, जीवंतता रखना ही धर्म है, जीवंतता रखना ही विज्ञान है, जीवंतता रखना ही यज्ञ है। अर्थात कंटिन्यूएशन, हमारे जीवन में सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का कार्य, थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में बदलने का कार्य। हम सब जानते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, ये हम जानते हैं, लेकिन उस जिसे जानते हैं वो हमारे आचरण में है कि नहीं, ये प्रमुख विषय है। हमें दृष्टि ये रखनी है, जिन विपरीत परिस्थितियों में स्वामी दयानंद जी महाराज ने मानव जाति को जगाने का कार्य किया, आज क्या हम सोचते हैं कि वो विपरीत परिस्थितियां नहीं है? पाखंड बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। अपने स्वार्थ के लिए जैसे परिवार, समाज, राष्ट्र आप हर जगह देख रहे हैं, वो क्या है? मेरा अहम संतुष्ट हो। तो आर्य समाज का कार्य क्या नियम हम बार बार बोलते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह विजन हमारे व्यवहार में आता है कि नहीं? यह दृष्टि हमारे व्यवहार में आती है कि नहीं? हम बार बार पढ़ते हैं, हर सत्संग में पढ़ते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस पर हमारा कितना फोकस है? हमारे बच्चों में इस विद्या के प्रति कितनी क्यूरियोसिटी है? इसको जगाने का कार्य हर आर्य समाज को करना है। अन्य देशों में, भारतवर्ष में भी जो नई पीढ़ी है वो निश्चित रूप से हमारे सिद्धांतों से विमुख इसलिए हो रही है क्योंकि हम व्यावहारिक बातें सरलता से उनकी भाषा में नहीं बता पा रहे। मुझे भी ये समस्या आती है जब आपके अन्य देशों में आता हूं, नई पीढ़ी मुझसे इसलिए थोड़ी सी कि मैं उनकी भाषा में, अर्थात उनको किस प्रकार से समझाएं। आप वर्तमान की जीवन शैली को एकदम बदल करके वैदिक सिद्धांतों को स्थापित नहीं कर सकते। हमें उस जीवन शैली में छोटे छोटे परिवर्तन करने, और वो प्रत्येक आर्य समाज के माध्यम से, जैसे कि हमारे अमेरिका सभा के द्वारा अन्य राष्ट्रों में संस्कृति स्कूल प्रारंभ किए गए, और संस्कृति स्कूल ऑनलाइन मुझे कई बार उन बच्चों से जुड़ने का अवसर मिलता है। जैसा कि हमारे महामंत्री संजय सूद जी कह रहे थे अमेरिका सभा के कि हम लगातार उन बच्चों के संपर्क में हैं,
तो संस्कृति स्कूल को माध्यम से पहले हम हिंदी भाषा, उसके साथ हमारे यज्ञों का महत्व, संस्कारों का महत्व, इसको छोटे छोटे पाठ्यक्रम हम बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के आगे चलें तो विश्व में बनेगा। दर्शन के सरल विषयों को व्यवहार में दर्शन कैसे आए, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा, ये जो 4 व्यवहार कैसे बच्चे करें, किसको हम मित्र बनाएं, ये सब विचार अगर आर्य समाजों के माध्यम से विश्व में जा रहे हैं, उन्हें फैलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को इसके साथ जागरूक कर रहे हैं, तो आर्य समाज 2050 का जो मिशन है, जिस प्रकार से 150 वर्ष की यात्रा हमारी हुई है, आप 25 वर्ष का लक्ष्य भी ले रहे हैं, उसके बाद अगला लक्ष्य हमारे आने वाली पीढ़ियां लेंगी। ये आर्य समाज संगठन के रूप में भी आगे बढ़ता रहे, विचारों के रूप में भी आगे बढ़ता रहे, और हम सबको इस विशाल परिवार की भावना का विकास करता रहे। आपको लगेगा भारत भूमि में आकर, जब आप इस हॉल से बाहर निकलकर घूमेंगे, कोई आंध्रा से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरल से, कोई नेपाल से, भारत के उन कोने कोने से वो लोग इस इच्छा से आते हैं कि जो दृष्टि दयानंद जी ने दी थी, ऋषि ने दी थी, आज हम उसके माध्यम से किस प्रकार समाज का परिवर्तन करें। तो मेरा निवेदन यह है, आपने जो इतना बड़ा प्रयास करके इस सम्मेलन में आने का अपना कार्यक्रम बनाया है, यहां से कुछ विचार, दृष्टि आपस में चर्चा करके भी हम ले जाएं। यज्ञ के विषय में हमारे अभी पीजी के हमारे डेलीगेट कह रहे थे, प्रतिनिधि आदरणीय महोदय, ऋषि दयानंद जी ने यज्ञ को सरल किया, ऋषि दयानंद जी ने कर्मकांड को दुरूह नहीं बनाया। मेरा निवेदन है, कर्मकांड को आपस में विवाद का कभी विषय न बनाए। ऋषि जी ने गृह सूत्रों को लेकर, धर्मशास्त्रों को लेकर, 100 सूत्रों को लेकर यज्ञ के सरल स्वरूप को हमारे सामने रखा, और कितनी सरल बात कही कि अपने बाह्य पर्यावरण के लिए 16 आहुतियां आप देते हैं, तो उन 16 मंत्रों से आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते चले। हमारा बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण, ये दोनों दूषित नहीं होने चाहिए। और इनका दूषण कब समाप्त होता है, जब हम इन क्रियाओं को निरंतर कंटिन्यूएशन में करते हैं, डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा, पंचैस्तान महायज्ञान यथाशक्ति नहापयेत, अर्थात 5 महायज्ञों को हर व्यक्ति अपने घर में समझे। मैं कई बार विश्वविद्यालयों की गोष्ठी में ये बात कहता हूं, राष्ट्र में शांति चाहिए तो 5 महायज्ञों की स्थापना करिए, समाज में शांति चाहिए तो 5 महायज्ञों की स्थापना कीजिए। ब्रह्म यज्ञ से लेकर ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, आप देखिए 5 यज्ञ पूरे पर्यावरण के आपके शोधन का कार्य कर रहे हैं, इसको शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। तो हम समाज, राष्ट्र और विश्व को विश्वभृत यज्ञ कर रहे हैं। इस सम्मेलन में मैं अपनी बात अंतिम रूप में ले जाते हुए कहूंगा कि हमारे गुरुकुलों के माध्यम से, हमारे दर्शन के कक्षाओं के माध्यम से, हमारी आर्य समाज की इकाइयों के माध्यम से, संस्कृत स्कूलों के माध्यम से यदि ये योजना चलती रहेगी तो आप उज्जवल भविष्य के साथ योजना लेकर जाएं। उज्जवल भविष्य हमारी संस्था का, और ये संस्था विश्व कल्याण का कार्य कर पाएगी। निश्चित रूप से ऋषि जी का जो योगदान है वो पूरे मानव समाज के लिए अमूल्य योगदान है। उसमें हम सब एक आहुति बनकर के कार्य कर रहे हैं। हमारी आहुतियां निरंतर पढ़नी चाहिए, अर्थात प्रतिदिन हमें अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर और इस विचारधारा को लेकर एक योजना बनाकर कार्य करेंगे तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमें परेशानी नहीं होगी क्या होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना क्या होगा। हम करते जाएं, अपनी आहुति देते जाएं, निश्चित रूप से उत्तम होगा। हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, उत्तम था भूत भविष्य भी महान है, मित्रों सोचो जो वर्तमान है। आज और हम आप सब मिलकर के वर्तमान का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो भविष्य भी अच्छा होगा। हमें चिंता नहीं, हमें निश्चित रूप से चिंतन करते हुए आर्य समाज को आगे ले जाना है। आपने मुझे ये अवसर दिया, मैं इस वैश्विक मंच पर हमारे जो भी आयोजक हैं, चाहे विश्रुत आर्य जी हों, भुवनेश जी हों, हमारे सूद जी हों, योगेश जी हों, अन्य देशों के हमारे साथी हों, आप सब जिस ऊर्जा से लगे हुए हैं कि ये सम्मेलन आप सबके आने से गौरवान्वित हुआ है। हम लोग आपके स्वागत की तैयारियों में महीनों से लगे थे। स्वागत में कोई कमियां होंगी तो मैं भी विनय हूं, विनय आर्य जी हमारे मुख्य संयोजन का कार्य देख रहे हैं, हम दोनों आपसे क्षमा भी चाहेंगे और आगे हमें सुझाव दें कि और क्या सुधार हो सकता है। इन सारे सम्मेलनों में कल और परसों और 2 तारीख तक आप भाग लें, ऐसी मेरा विश्वास है।
और आर्य समाज के उज्जवल भविष्य के सपने, कल्पनाएं नहीं, योजना लेकर के हम यहाँ से जाएं, तो योजनाओं के साथ निश्चित रूप से विकास होगा, बढ़ेंगे तो हमारा कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष सार्थक होगा। आइए मेरे साथ जोर से बढ़िया बोलिए, हम लोग एक ही नारा बोले, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। व्यक्तिगत रूप से भी संपूर्णता में आर्य बने और विश्व को आर्य बनाएं, दोनों संकल्प लेकर आगे जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मैंने प्रयास किया कि उसके अंदर अपनी बात कहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय जी। तो बहुत ही सरल और बहुत ही प्रोफेसर हैं तो अच्छा ही बोलते हैं, समझने लायक होता है, उसी लेवल पर बोलते हैं ऑडियंस के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्तमान पे फोकस करना, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे। तो इफ़ योर प्रेजेंट इज़ गुड, योर पास्ट विल बी गुड, योर फ्यूचर विल बी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करते हैं। So this is my honor. So amongst us we have Padma Shri Acharya Sukama ji. I'll invite her onto the stage. Acharya Sukama ji, यदि आप मंच पर आ जाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं पद्म श्री आचार्य सुकामा जी। उसी के साथ I will also like to invite Dr. Kavita Vachaknabe ji. She is also one of our keynote speakers. आचार्य कविता वाचकनबे जी, आप भी यदि स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर कविता जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। So as Kavita ji is walking towards the stage, I like to introduce the next keynote speaker. We have here with us Acharya Aryasha ji. Acharya Aryasha ji is a devoted scholar trained in Gurukul Aryavan under Acharya Sheetal ji and Acharya Ashish ji. She currently mentors young girls at Gujar Kanya Gurukul, Devdhar, during guiding them in values, discipline and spiritual growth. She will also serve in a leading role at the upcoming Atmonti Nari Navchetna Kendra, shaping spirituality rooted and socially responsible young women. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आचार्य आर्यशा जी का। आचार्य आर्यशा जी, प्लीज। एक मंत्र से मैं प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर विराजमान मुझसे ज्ञान में बड़े, अनुभव में बड़े और उम्र में बढ़े और मेरे समक्ष बैठे हुए भी हमारे आचार्य गण हैं और सब मुझसे अनुभव में, ज्ञान में, सब में बड़े हैं। मैं सबको सादर नमस्ते करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। विभिन्न देशों से यहाँ पर पधारे हुए सभी पदाधिकारियों का, अतिथि महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ भारतवर्ष में। सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपने मुझे इस महासम्मेलन के महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति डालने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। तो जो मेरा विषय है वो ये है कि जो हमारे रविवार का सत्संग होता है उसमें क्या क्या ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि हम अपने आर्य समाज के सिद्धांतों को ग्लोबली और जल्दी बढ़ा सकें, हमारा जो उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए वो पूरा हो सके। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रारूप रखना चाहती हूँ। उससे पूर्व ये बात कहना चाहती हूँ कि जब हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए
हमें अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चे और अपने युवाओं पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम हमारे युवा करेंगे और हमारे छोटे बच्चे करेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि अपने जो रविवारीय सत्संग है उसमें अपने युवाओं और अपने छोटे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी ये कल्याणकारी जो लेगेसी है वो विश्व भर में आगे बढ़े। तो एज ए यूथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि उसमें क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, अपनी ओर से मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का प्रारूप मैं आपके सामने रखूँगी, जिसमें 45 मिनट का यज्ञ, जो कि हमारी परंपरा है, उसे अपने रविवारीय सत्संग में करना बहुत आवश्यक है। तो जो 45 मिनट का यज्ञ होगा उसमें आहुति डालने के लिए हम अपने बच्चे, युवा और जो एल्डर्स हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट करें। अगर उसमें बड़े लोग भी यज्ञ में आहुति देने के लिए और यजमान बनेंगे तो बच्चों का और युवाओं को उसमें इंटरेस्ट जागेगा, और जो बड़े लोग हैं वो आहुतियाँ कैसे देनी हैं उसके जो नियम रूल रेगुलेशन हैं वो बच्चों को समझ में आ जाएंगी, बच्चे उससे इंटरेक्ट हो पाएंगे। और उसके साथ साथ महीने में एक बार जब हम यज्ञ की तैयारी आदि करते हैं तो हमारे पुरोहित महानुभाव करते हैं या अन्य बड़े लोग करते हैं, तो अगर बच्चों का इन्वॉल्व हमें उसमें चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें चाहिए, तो मैंने ये अनुभव किया है कि हम बच्चों को और युवाओं को जब अवसर देते हैं, उनको कोई काम सौंप देते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, तो उनको बड़ा उत्साह मिलता है, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो इन चीज़ों को करते हैं। तो उनको आहुति डालने के लिए देंगे तो वो बहुत प्रसन्नता से आहुति डालते हैं, बड़े खुश होते हैं। और युवाओं को भी महीने में एक बार यज्ञ की जो तैयारी है वो करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, जिसमें बड़े उनकी सहायता करें। तो अगर वो यज्ञ की तैयारी करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या यज्ञ की सामग्री होती है, क्या क्या उसमें करना होता है, क्या क्या उसके नियम हैं, कैसे कैसे उसमें बैठना होता है। तो युवाओं को और बच्चों के दिमाग में ये चीज़ जाएगी और आगे आकर के वो उस काम को संभालने योग्य बनेंगे, जिससे कि हमारी यज्ञ की जो लेगेसी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो 45 मिनट का हम यज्ञ का कार्यक्रम अपने रविवारी सत्संग में रखें, जिसमें यज्ञ प्रार्थना तक और कोई विशेष आहुति यदि देनी हो तो उसमें दे सकते हैं। आगे जो 10 मिनट हैं, जब हमारा यज्ञ समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 10 मिनट हमें बच्चों का प्रेजेंटेशन के लिए समय दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे और जल्दी हमारे यज्ञ से और इस सत्संग से, इस परंपरा से जुड़ सकें। उसमें बच्चे कोई नीति श्लोक रख सकते हैं जिनका अर्थ वो करें, उस श्लोक को छंद सहित गाएं। जैसे भर्तृहरि जी के श्लोक हैं, चाणक्य नीति के श्लोक हैं, बहुत ऐसे श्लोक हैं जो युवाओं और बच्चों के जीवन से सीधे जुड़ते हैं। जैसे हम लोग गाते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तो ये जो श्लोक है इसकी एक छोटी सी कड़ी है। इसमें हमारे युवा आज के इस चकाचौंध की दुनिया में जिस दिशा में जा रहे हैं, जो पाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसमें उनको समझ में आएगा कि जब हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हम एक्सेस करने लग जाते हैं, किसी चीज़ को अति करने लग जाते हैं, तो फिर वस्तु हमें भोगने लग जाती है। तो ये उनको समझ में आए तो वो उसका अर्थ भी करें, उस छंद से जो श्लोक को भी करें, या अपना कोई प्रेजेंटेशन दें अच्छा जो उन्होंने तैयार किया है, बड़ों ने उनको उसमें मदद की है। और फिर वो बच्चे जो बड़े हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें महीने में एक बार। जो बच्चों ने रविवार को अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जो अपना भजन गाया है, तो मैं 45 मिनट के बाद जो अगला 10 मिनट है उसमें बच्चों का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें वो अपना एक छोटा सा कुछ बोलेंगे और एक भजन भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये रविवार को जो बच्चे कर रहे हैं, जो युवा कर रहे हैं और बड़े उनकी मदद कर रहे हैं, अंत में जो एक महीने का एक रविवार होगा, अंतिम संडे होगा, उसमें उन बच्चों को एक सिंपली क्विज कंपटीशन कराया जाए या कुछ उनसे पूछा जाए, और जो बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्म करता है उस बच्चे को फिर प्राइज़ भी दिया जाए।
जो उसके लिए यूज़फुल हो। उससे बच्चे में कंपटीशन की भावना भी आएगी, जो कि पॉजिटिव भी है कुछ करने के लिए, और उनमें उत्साह भी आएगा। इसमें बड़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आवश्यक हो जाएगा, तो इससे हमारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उसमें और अधिक हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए हम एक रूपरेखा बना सकते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि लेगेसी और अच्छे से परंपरा आगे ट्रांसफ़र हो। अगला जो चीज़ है, अब केवल बच्चों के लिए करेंगे तो जो बड़े आए हैं आर्य समाज के सत्संग में, उन लोगों के लिए भी कुछ न तो कुछ होना ही चाहिए। तो फिर अगला 20 मिनट जो पुरोहित हैं, जो बड़े लोग हैं, जो आचार्य हैं, वो 20 मिनट का एक सार गर्भित जो आवश्यकता हो वो बड़ों के लिए प्रवचन किया जा सकता है, जिससे कि बड़े भी उस यज्ञ में अपने समय का सदुपयोग समझें। तो 10-20 मिनट के लिए बड़ों का प्रवचन हो, और उसके बाद 5 मिनट या 3 मिनट का भजन, वो बड़े अपने हिसाब से भजन रखें जिसमें गहरी आध्यात्मिकता हो, जैसा भी आप लोग सब समझते हैं। वो 20 मिनट के लिए 20 से 25 या 20 से 23 मिनट के लिए बड़ों का उसमें समय होना चाहिए, जिससे कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट बराबर हो जाएगा। उससे जो अगली चीज़ है, अब 12 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा जो रविवारीय सत्संग होता है उसमें हम मेडिटेशन को प्रायः योगदान नहीं देते हैं या संध्या के मंत्र बोल करके ख़त्म करते हैं, तो थोड़ी सी हमें उसके बाद मेडिटेशन के लिए भी 12 मिनट का समय रखना चाहिए, रखा जा सकता है, जिसमें बच्चे बड़े सबको, बच्चों को आंख बंद करके बैठना भी कई बार नहीं आता है। तो बच्चे आंख बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा चंचल होता है, तो भाग जाता है इधर उधर। तो बच्चों को आंख बंद करना भी आए, श्वास पे ध्यान देना भी आए, वर्तमान में रहना आए। ओम मेडिटेशन के नाम से या वैदिक मेडिटेशन के नाम से हम बच्चों को वो ध्यान की एक पद्धति कराएं छोटी सी, जिसमें हम ओम का उच्चारण कराना है और आंख बंद करवाना है, वर्तमान में रहना सिखाना है, प्रेजेंट में रहना सिखाना है। ये 12 मिनट का एक प्रारूप तैयार किया जाए, जिसमें बच्चे को बाद में जब हो गया है उसके बाद पूछा जाए कि क्या वो आंख बंद कर पाए हैं, उनने आंख बंद करके कैसा अनुभव किया। अगर हम उनसे पूछेंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारे काम की चीज़ है। तो उनका इन्वॉल्वमेंट ध्यान जैसी चीज़ में भी होगा। ओम मेडिटेशन के नाम से या फिर वैदिक मेडिटेशन के नाम से हम 12 मिनट का अपने रविवारीय सत्संग में ये प्रारूप भी रख सकते हैं। और जो अन्य बातें हैं, तो ये 1 घंटा 40 मिनट के आसपास से प्रारूप हो जाता है, जिसमें बड़े बच्चे सब प्रकार के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, और हमारी जो लेगेसी है वो नई पीढ़ी में ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि जब बड़ा उद्देश्य होता है तो हम लोगों को छोटे छोटे जो हमारे दैनिक कार्य हैं, जो डेली रूटीन है, उसमें उन कार्यों को शामिल करना होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाएं, हमारे बच्चों के व्यवहार में आ जाएं। एज ए यूथ मुझे इसकी आवश्यकता अनुभव में आती है, बाकी आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। अन्य जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें सोशल मीडिया को भी उसमें रखना चाहिए। तो जो हमारे बच्चों ने हर संडे में जो वो 10-10 मिनट का अपना परफॉर्म करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें जिसने सबसे अच्छा किया उस बच्चे का एक अच्छा सा वीडियो बना करके उसको आर्य समाज का व्हाट्सएप ग्रुप हो या उसका फेसबुक पेज हो, उसमें यूथ स्कॉलर ऑफ द वीक के नाम से हम उसको प्रमोट करें, उस ग्रुप में डालें, उस फेसबुक पेज पे डालें, जिससे कि बच्चे को और उत्साह मिलेगा। तो एक यूथ विद्वान हमारा तैयार होगा। धीरे धीरे हम अपने सामने एक यूथ विद्वान को प्राप्त कर जाएंगे और हमारी लेगेसी उसमें पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो हमारे विश्व में आर्य समाज के सिद्धांतों को फैलाने के लिए बहुत उपयोगी है। और साथ ही अंत में जो परीक्षा लेनी है, जो परीक्षा ली है, उस परीक्षा के लिए भी सबको जिम्मेदार रहना हो सकता है, जिसमें बच्चों की परीक्षा लेने के लिए एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनाए जाएं, कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स पूछने चाहिए या कुछ और पूछना चाहिए, उसकी एक रूपरेखा बनाई जा सकती है और बच्चों का एग्ज़ाम लिया जा सकता है, जिसमें उनको यूज़फुल प्राइज़ दे करके उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस तरीके से जो आर्य समाज का 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का जो प्रारूप है, वो हमारे आर्य समाज के इन सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए सहयोगी हो सकता है। तो आप लोगों ने मुझे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर बोलने का अवसर दिया कि मैं यूथ क्या सोचता है रविवारी सत्संग के बारे में, कि हम उसमें क्या करें ऐसा जिससे कि हमें भी लगे कि ये रविवारी सत्संग हमारा है।
बच्चे को भी लगे कि ये रविवार का सत्संग हमारा है। तो इस तरीके से बच्चा और बड़े और बुजुर्ग और हमारे छोटे बच्चे और यूथ सबका उसमें पार्टिसिपेशन होगा और हम लोग अपनी विचारधारा को जल्दी से जल्दी पूरे विश्व में फैलाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आशा करती हूँ मैं अपने प्रारूप को आपके सामने रख पाई हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होगी उसकी उत्तरदायी मैं हूँ, मैं उसमें सुधार करूँगी और जो कुछ भी मैं यहाँ पर अच्छा रख पाई हूँ वो हमारे गुरुजनों का दिया हुआ है, महर्षि दयानंद का दिया हुआ है, आर्य समाज का दिया हुआ है, वेदों का दिया हुआ है। आप सबके बहुत अच्छा ध्यान के लिए मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अंतिम में कुछ लाइनें बोल करके जाऊँगी। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन ऋषि के गीतों से त्योहार मनाया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आर्यशा जी। बहुत ही, आई थिंक शी हैड द कंप्लीट पैकेज. I really liked her suggestions. We will look into these and try to implement these. In Houston, where I come from, we try to do much of it, but not exactly the same way. But I do think that in Arya Samaj, Sandhya Upasana mein hi Upasana khatam nahi hoti. We need to do the real Upasana, which is missing in the Sunday satsangs also. So that's a very good suggestion, and making kids responsible for doing the activity, preparing the havan, that's a wonderful suggestion. We will definitely look into that. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक बार जोरदार तालियां से उनका धन्यवाद. So our next keynote speaker is Dr. Kavita Vachak-Navi ji. So I personally know her from 2015. She came to Houston in 2015. I think two people I met who were the keynote speakers in 2015. So that was a magical year for me, I think. So Dr. Kavita Vachak-Navi ji, she is a renowned Hindi author. She has a PhD in Hindi. She was with Arya Samaj Houston from 2015 till 2021. She was the director of our Sunday school, and our school grew leaps and bounds. We went from somewhere around 70 students to over 250 students, and she also adapted very well when COVID or Corona, whatever you call, hit us in 2020. She very quickly, we didn't miss a single Sunday school day in Houston because of her vision and her activity. She quickly took it to online and made it our global VSS. Now she lives in New York, where she leads VSS Global and also Rishikulam. So without much ado, I'd like to invite Dr. Kavita Vachak-Navi ji to present her thoughts on today's theme. Welcome, Dr. Kavita Vachak-Navi ji. धन्यवाद संजय जी. मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को और सभा में उपस्थित सभासदों को नमस्ते. आज 30 नवंबर है और प्रचलित कैलेंडर के अनुसार आज ही की सायं महर्षि दयानंद ने अंतिम श्वास ली थी. तो मैं अपना पहला और समस्त प्रणाम उस ऋषि को निवेदित करती हूँ. मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ, जो कुछ भी हूँ. मैं सुन रही थी वक्ताओं को. मुझे आज अभी लगभग घंटा भर पूर्व पता लगा कि मुझे इस सत्र में बोलना है, और क्या बोलना है यह भी अभी पता लगा. अस्तु. तो मैं सुन रही थी जब कि आर्य समाज के सत्संग में
सुधार के क्या उपाय किए जाएं, हिंदी में यदि हम इस विषय को रूपांतरित करें तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आर्य समाज किसने बनाया। जिस ऋषि ने आर्य समाज को स्थापित किया, जब उन्होंने पूरी रूपरेखा दे दी, उसके बाद हम कौन होते हैं कि उस रूपरेखा में कुछ सुधार करना है जी? तो कैसे सुधार किया जाए? क्या हम महर्षि से अधिक विद्वान हैं? या इसका एक निहित अर्थ है। निहित अर्थ यह है कि हम ऋषि के बताए जो रूपरेखा थी, जो नियम थे, जो संविधान था, जो आदेश थे, जो संकल्पना थी, उससे च्युत हो गए हैं, हट गए हैं, भटक गए हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और अब हम अपने आप को चाहते हैं कि हम वापस आएं, लेकिन कहाँ वापस आएं? क्या उसका सुझाव देने का अधिकार मुझे है? यदि दयानंद कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत की बात और बैक टू वेदास की बात, तो यदि किसी को भी आज के समस्त आर्य समाज वैश्विक संगठन को यदि अपने सत्संगों में सुधार की गुंजाइश कम से कम दिखाई देने लगी है, बड़ी हर्ष की बात है और बड़े दुख की भी बात है। मैं क्षमा चाहूँगी यदि मैं कुछ कड़वी बातें कह रही हूँ तो, या कहूँगी तो यदि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो वह सुधार करने के लिए अब बैक टू दयानंद जाइए। तो दयानंद ने कहा समाज को परिवर्तन करना है तो बैक टू वेदास, मनुष्यता को सुधारना है तो गो बैक टू वेदास। तो उसी तर्ज पर हम कहेंगे आपको आर्य समाज को सुधारना है, यानी सत्संग। अब आर्य समाज का केवल यही एक चीज़ बची है जिसमें सब समाज जुड़ता है। गुरुकुल अपने चल रहे हैं जिस किसी भी प्रकार, तो समाज जिसे परिवार कहते हैं एक ही चीज़ पर इकट्ठा होता है, थोड़ा बहुत जितना भी होता है, सभी जानते हैं वास्तविकता क्या है, वे हैं सत्संग। और यदि हमें उन सत्संगों में भी सुधार की गुंजाइश करनी है तो हमें यह हमारे पुनरावलोकन का समय तो है ही, बहुत पहले से था, आज से मैं कहूँगी 30-40 वर्ष पहले, जब श्री राम गोपाल शालवाले जी ने सार्वदेशिक संभाली, उस समय भी हमें लगता था आर्य समाज को पुनरावलोकन की आवश्यकता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी। दूसरी बात जो मैं कहूँगी, दयानंद ने पूरी रूपरेखा दे रखी है सत्संग कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, और हम, आपको आश्चर्य होगा, आर्य समाज में उसका कहीं भी पालन नहीं होता। और पालन ही नहीं होता, यहाँ तक की बात होती तो तब भी थोड़ा सा आप धैर्य रख सकते हैं। कुछ ऐसी समाजें हैं और बहुत सारी ऐसी समाजें हैं, मैं संसार की कम से कम 500 आर्य समाजों में जा चुकी हूँ और विश्व के कम से कम कई देश, यूरोप, एशिया के, अमेरिका के, हम उनका पालन नहीं करते ही तक बात नहीं है, हम उससे विरोधी विपरीत चीज़ें आर्य समाज में करने लगे हैं, जिनके लिए दयानंद ने कितनी बार विष पिया, प्राण दिए और क्या क्या किया। हम उसके नितांत विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो उनका परित्याग कर देना चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं कि यदि आप श्री राम को सम्मान करते हैं, उन्हें महामानव समझते हैं, तो आप हिंदू हैं। लेकिन राम को गाली देकर भी आप हिंदू रह सकते हैं, मांस खाकर भी आप हिंदू हैं और मांस ना खाकर भी आप हिंदू। तो उसी प्रकार से अब आर्य समाज में ऐसा हो गया है कि आप आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलें तो भी आप आर्य समाजी हैं, ना चलें तो भी आप आर्य समाजी हैं, तब भी आप अधिकारी हैं, तब भी आप आचार्य बने रह सकते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, यह बात वहीं जाकर जुड़ेगी। तो हम उसी तरह का कुछ चूचू का मुरब्बा हो गए हैं। कल परसों मैं स्वामी सत्यप्रकाश जी के कुछ लेख देख रही थी, उन्होंने उस समय आज से 40 वर्ष पहले इस पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन 40 वर्ष का समय नदी बह गई, हमने कुछ नहीं किया। तो दो चीज़ें मैं आपको निष्कर्ष रूप में कहूँगी। पहली बात, दयानंद ने जिस आर्य समाज की रूपरेखा हमारे सामने रखी है उसे खोलिए, उसे पढ़िए और उसका पालन अक्षरशः कीजिए। आर्य समाज
जो है वह रिलीजियन नहीं था, ना है। इसलिए रिलीजियन बनने का, आर्य समाज मंदिर बनने का, या मूर्ति की जगह हवन कर लिया और फिर हवन की आरती होने लगी आर्य समाजों में। आपको आश्चर्य होगा बहुत से लोगों को। हवन कुंड के पश्चात, हवन समाप्त होने के पश्चात आरती की थाली लेकर हवन कुंड की आरती उतारी जाती है अमेरिका के कुछ आर्य समाजों में। तो इस दौड़ में मत जाइए, उसे पढ़िए, खोलिए और उसका अक्षरशः पालन करिए। दो चीजें जो व्यक्ति को, संसार को बदल सकती हैं, दो चीजें हैं। कोई उपदेश, कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति किसी को नहीं बदल सकता ईश्वर के अतिरिक्त। केवल ईश्वर बदल सकता है। उस समय की मांग थी कि आर्य समाज सामाजिक आंदोलन बना, बहुत आवश्यकता थी। लेकिन हमने हमारे घरों में, चलिए आप किसी दूसरे के यहाँ जाइए जो रिलीजियन वाले हैं, कुछ ना कुछ होता है। एक आप यदि आर्य समाजी के घर में जाएंगे, वे समझते हैं हमने हवन कर लिया, यही अध्यात्म हो गया। और हवन यानी उसे यज्ञ कहते हैं। हमें, मुझे, आपको, किसी को लज्जा भी नहीं आती। वह अग्निहोत्र है सबसे न्यूनतम। और हम समझते हैं आर्य समाज की सामग्री, आर्य समाज का घी, आर्य समाज की समिधा, आर्य समाज का हॉल और आर्य समाज का वेन्यू, हमने हाथ लगा दिया तो हमें पुण्य मिल गया। हवन जिसे करना है अपने घर पे करिए। महर्षि दयानंद के समय किसी आर्य समाज में हवन का प्रावधान नहीं था, ना महर्षि दयानंद ने रखा। और उस समय जो बने श्रद्धानंद, लेखराम और जो निकले लाहौर से युवा पीढ़ी, तब वे आर्य समाजी निकले, क्योंकि युवा पीढ़ी की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। और बच्चे, या तो बच्चों को यदि आप बदलना चाहते हैं, या तो बहुत बचपन से संस्कार दीजिए। और उसकी भी फिर एक विधि, ऐसे नहीं जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं कि उनको ऐसे कराओ, उनको, बच्चों को हमने अपनी एक लेबोरेटरी समझ रखा है। मैं उस पर अभी बाद में आती हूँ। तो या तो आपको बचपन से ही बहुत बच्चे को एकदम बदल दीजिए, उसकी पहली ईंट सीधी रखिए। बच्चा अपने आप नहीं रखेगा, रखनी होगी। वो कैसे रखी जाएगी उस पर भी अभी आते हैं। तो मुझे 10 मिनट का समय है, सॉरी संजय जी, एक आध मिनट ऊपर हो जाए, यहाँ हो गया है यदि समय, तो मैं बस समाप्त करूंगी। तो या तो उपासना आपको बदल सकती है। आर्य समाज उसमें भी लगभग 40 वर्ष पीछे चल रहा है। उपासना, सारी दुनिया में मेडिटेशन इंडस्ट्री बन चुकी है और हम अभी जाग रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कर लें, मंत्र पाठ के अलावा भी कुछ कर लें। तो या तो ईश्वर बदलेगा, आप सच्चे विधि से सही तरीके से उपासना कीजिए। केवल ईश्वर ही है जो आपको मार्ग दिखाएगा और आपको आमूलचूल चरित्र में आपके परिवर्तन कर सकता है। संसार की कोई पुस्तक, कोई भाषण मनुष्य को नहीं बदल सकता। और या दूसरी विधि है कि एकदम बालपन से ही, है ना, मदालसा की बातें आती हैं और भी बातें हमने सुनी हुई हैं, जीजाबाई से लेकर, एकदम बचपन से आप निर्माण शुरू कीजिए। और बच्चे, यह ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा, बच्चों को दोष देना बंद कीजिए कि बच्चे आते नहीं। मैं यूरोप के कई देशों, अमेरिका, भारत और एशिया के कई देशों में रही हूँ, घूमी हूँ, जा चुकी हूँ, बच्चों में काम किया है कई वर्षों से। बच्चे केवल उसके पास उसकी सुनेंगे। अभी यानी एक उदाहरण से मैं बताती हूँ। एक बच्ची मेरी स्टूडेंट, वो अभी थोड़ी युवती हो गई है, उसने अभी 8-10 दिन पहले मुझे फ़ोन किया अमेरिका में और कहा कि अमुक अमुक ने, अमुक अमुक आचार्य ने अमुक अमुक अध्यापिका को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया, डांट दिया। और मैं उस प्राध्यापिका को भी जानती हूँ, वे कौन है, इतनी सुशील, सेवाभावी। तो वो बच्ची मुझे कहती है कि यदि वे आचार्य होकर इतना संयम नहीं रख पाते, उनकी वाणी ऐसी है, व्यवहार ऐसा है, तो कोई क्यों उनकी बात सुनेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, बच्चे, यदि मेरे पास 10 क्विंटल सोना है या 10 किलो भी सोना है, तो मेरा रहन सहन रईसों वाला होगा। तो यदि मेरे पास वेद है तो मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि मेरे पास संसार का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ऋषि है शिक्षा देने को,
तो मेरा आचरण और मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो बच्चे केवल उसकी ओर आकर्षित होते हैं जिसे वे देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में उसके वे आदर्श या वे शिक्षाएं, उसका अच्छा व्यवहार है, कम से कम सामान्य जिसे सिविलाइज्ड पर्सन कहते हैं, सफाई है, अनुशासन है, माधुर्य है, ये सब चीज़ें हों, वे तब आपकी बात सुनेंगे। परिवारों में, घरों में, संस्थाओं में, आर्य समाजों में। और ये मिक्सअप मत कीजिए कि सत्संग में ही बच्चों को ही पूरा दे दिया जाए, फिर हमारे उद्धार का, हमारी पीढ़ी, हमारे आयु वर्ग वालों के लिए क्या होगा? हमसे पहले कलकत्ता आर्य समाज में आप देखिए या दूसरी आर्य समाजों में बाल सत्संग होते थे, बच्चों का प्रावधान अलग रखिए। मेन सत्संग में ही आप बच्चों को मत इन्वॉल्व कीजिए, इससे बहुत लोकेशनाएं बच्चों में बड़े होकर आ जाएंगी इसमें। और हमारे जो विचार विनिमय करके सुधरने का जो एक सप्ताह में 1 घंटा है, वह भी आपने उसी में लगा दिया। तो मुझे निर्देश आ चुका है कि मैं समाप्त करूं। मैं 2 अंतिम बातें कहूंगी। बच्चे कभी उपदेशों से नहीं सीखते, बच्चे केवल आपके एक्शन से सीखते हैं। अपने एक्शंस बदलिए, मैं बदलूं, आप बदले, हम बदले, पूरा वैश्विक संगठन बदले। और दूसरा, अपना व्यवहार बदलिए और देखिए जिन आदर्शों को आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप करते जाइए, बच्चे आपके पीछे पीछे चलेंगे। उपासना और बाल निर्माण, ये 2 मुख्य चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें कैसे करना है मैंने संकेत रूप में कहा। समय देने के लिए धन्यवाद। ओम। कविता जी का, डॉक्टर कविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको इस बीच सूचित कर दूं कि हमारे बीच में शीघ्र ही गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी पहुंचने वाले हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं। तो हम इस श्रेणी में आगे चलते हैं, हमारे पास वक्ता बहुत हैं, समय सीमित है। तो मैं एक बार फिर पुनः आग्रह करता हूं सभी वक्ताओं से कि हम आर्य लोग हैं, समय का पालन करें, संबोधन बिल्कुल ना करें, प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करते हुए एक लाइन में आप अपनी बात को रखें और समय का पूरी तरह से पालन करें, तो आपकी हम पर कृपा होगी, दया होगी। मैं अब इस कड़ी में, जबकि हम महामहिम डॉक्टर राजपाल जी का, हम डॉक्टर देवव्रत जी का यहाँ पे सेटअप लगा रहे हैं साथ साथ, मैं इस बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र सैनी जी को, जो कि प्रेसिडेंट आर्य समाज नैरोबी। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आप इस सभा के अध्यक्ष भी हैं, अपनी बात को हमारे बीच में रखें। सभी को मेरी नमस्ते। All other protocols observed. When I was thinking of this topic today, I thought time has come when we have to think outside the box. To say that we do not have any issues, I think we are not facing reality. So time has come when we must have a check amongst ourselves. When we think of the topics today, or these 6-7 other pillars we have, it all boils down to one simple thing: how are we going to improve our outreach within our community and outside our community? That is the crux of the matter. We know Swamiji gave us a great legacy, but 150 years ago, are we still going to rely on that legacy and think of nothing else? It is time we think and create our own legacy and build on what Swamiji did. Swamiji gave us a great legacy, a universal mission of truth, equality, women's rights, rationalism, education. Yet 150 years ago, what is the fact outside? We in Nairobi, we started Arya Samaj 122 years ago. First Arya Samaj outside the Indian subcontinent.
where are we now? We have to think. Our ideas are universal, as prescribed by Swamiji, but our global connection is weak. While thinking of this topic, I said let us compare with some other organizations which are flourishing all over the world compared to us. Some of you may not like the comparison, but why has yoga, Hare Krishna, and other movements thrived more globally, all inspired by Vedic wisdom, while Arya Samaj remains confined to community circles? We have the truth, but perhaps not the story. We have knowledge, but we lack emotional connection. The reality check is, we founded schools, colleges, institutions, but our outreach has slowed. Our messages remain largely inward looking. We preach within our four walls and nothing else. While other global movements like yoga, ISKCON, and mindfulness have created powerful, joyful, and inclusive experiences rooted in India's ancient wisdom, but presented in global language. In Arya Samaj, as I say, our vision is vast, but our visibility is small. This is not failure, but it is a call for renewal. What can we learn from some of these global movements? Some of you may not like these comparisons. It doesn't matter, but there are things we can learn from them. Look at the yoga movement. It is practical, experiential, accessible. You try it, you feel it. Adapted ancient wisdom to science and wellness. Look at the Hare Krishna movement. Its vibrant sense of belonging, temples, music, food, festivals. They had charismatic global leaders, which we in Arya Samaj lack. Look at the Buddhist movement. There's universal packaging, compassion, peace, meditation, focused on experience, not ritual. These movements have translated spiritual ideas into experiences people could live. That is the bridge which Arya Samaj must build. What did these movements do right? They created experience-based entry points, yoga, chanting, meditation. Built global identities with clear symbols and slogans, used music, food, festivals and art to build community joy. They trained charismatic English-speaking communicators, focused on human universal values, not sectarian boundaries. So they made ancient truths visible, joyful and relatable. What have we in Arya Samaj? We have branding weakness. We have no unified global identity or visual recognition. There's a communication gap. We are heavy on sermons, light on storytelling. We have a language barrier. Few priests and leaders fluent in global languages. Our Sunday satsangs are repetition over renewal. They are too formal, too experiential. We are isolated, as I said before, within our four temple walls. We have all the light and the knowledge, but it has not reached the corners of the world. We chant Krimantu Vishwa Aryam. That is a hollow slogan if we don't work towards it. So what I'm trying to say is not criticism, it is introspection. The first step for ourselves to transform ourselves as we move into the next century.
Why do youth feel disconnected? We will discuss this in the next session in a bit more detail. What do the youth want? They want purpose, authenticity, creativity, not only preaching. They don't want these bhashans day and night. They crave engagement through service, art, digital media, and real-world issues. We do not discuss contemporary issues in our Sunday satsangs. Our teachings are powerful, but our methods have not evolved with their world. It's not that the youth are not interested. They are uninspired. Let us make Arya Samaj a movement they can live, love, and lead. How do we reclaim Swamiji's vision? Swamiji was a revolutionary, fearless, rational, reformist. He called for equality, education, truth, and courage against superstition. To revive Swamiji's legacy, we have to modernize our communication. We have to engage in global issues, environment, peace, ethics. Inspire action, not just believe. Let us not preach Swami Dayanand, let us live Swami Dayanand. I would propose, I have skipped a few slides. Sorry. Let me go back a little bit. What I'm proposing is a three-dimensional renewal. What do we need? Experience, engagement, expression. Experience in make Vedic living tangible through meditation, service, wellness, engagement through youth creativity, music, dialect, and art. Expression, we need modern branding, digital storytelling, multilingual outreach. Of course, we have to reach out to our youth, which we can discuss in more detail later. We need more modern priests and teachers fluent in English, skilled in communication and digital outreach. In this connection, even our gurukuls have to change. We have to include more languages and also interfaith dialogue. So basically what I'm saying is we need more identity, branding, experience engagement, youth empowerment, and global alliances. We can talk of the rest later since I'm being pushed. I can end by one simple message. Arya Samaj is not a sect. It's a universal movement for truth, equality, human upliftment. We don't have to compare ourselves with anybody. To reach the world, we must speak in the world's language of experience, compassion, and service. Let us show that Vedic wisdom is not ancient, it is eternal, and Arya Samaj is its living messenger. Together, let us make the world noble and not merely keep it as a slogan. Thank you very much. बहुत धन्यवाद Dr. Saini ji for this beautiful presentation and your insights about today's topic. बहुत धन्यवाद. Now moving on to the next speaker. The next I have the privilege of introducing Vidya Bhushan, Dr. Vidya Bhushan Verma ji. So I've known Bhushan ji for last, I think now, I don't know how many years, maybe almost 20 years now. He was the one who introduced me to Arya Samaj, Greater Houston. He took me under his wings and introduced how do we do satsang, how do we do Havan, and how do you make announcements. So he was the one who introduced me to a lot of stuff. So I owe a lot of things. I'm able to speak here because of, in front of you, because of him. He is the past president of APSA. He is the one founding member of Pragati.
the organization which gives scholarships here in India. He was the one who came up with this idea and raised a big corpus for giving out those presentations. Other than that, he's a wonderful human being. He's the chief guest for today's session. I'll request Bhushan ji to give his words. Bhushan ji, please welcome Dr. Bhushan Verma ji with a round of applause. ओम। पूज्य आचार्य जी, स्वामी जी, साध्वी जी, respected audience here, all the Oregon, and पूज्य मातृशक्ति, यानी बच्चे जो हैं उनके लिए भी नमन। I was also like many other speakers who weren't given any time notice, so I'll be speaking extempore, which is all right, I think. I'll address more of the issue of governance from a different perspective, where, you know, there are 5 basic tenets of governance, whether it's of an organization or it is of an institution, or, you know, it is a generic vision that you want to implement. So the first tenet is that of actually creating a vision. Anything that starts is with an idea, with a vision. Jaise an example is Swachh Bharat. It's a vision. So the second tenet then becomes the plan to implement that vision, or to make that vision come alive. So you do a very thorough job in planning, and as you plan, you identify how and who will actually help you to execute that plan. So you put a team together that would make that plan a reality. And then the fourth part of the governance is actually execute that plan. And you don't just execute it without thinking about it, without getting the right team members involved, and then doing the right checks and balances on it. And then the final thing, or the tenet of any governance, is a follow-up. Because if you just execute and then let it go, there will be many, you know, mistakes you may have made in planning, in selecting the team members, in executing it. So you have to correct things as you move. Nothing is perfect. So you can't just leave it on, okay, well, this is what was given to us, we're going to do it, and let things happen. But those 5 tenets are essential for, I would claim, a samaj, a satsang, creating whatever plans you want to make, creating things like we are enjoying it here as a Mahasammelan. It takes a lot of effort. But then, with reference to Arya Samaj governance, where we have been given the directives from our founder Maharishi Dayanand, and there were many of his very
capable followers who guided us into taking Arya Samaj forward, including making school systems, DAV colleges and all that. So I think all of that has progressed in a very natural progression. But looking back at the moment in terms of how and where we are, two things I must add that are needed to have a better future for Arya Samaj. One is that of unity. There are so many Arya Samajas in the world that are following their own agenda, that are following their own ways of doing yajna, their own ways of doing meditation, yoga, other things, but there's no commonality. There's no unity. We keep reciting the mantra Sam Gacchadvam Sambaddhadvam Sambho Manansi Janatam, right? But then do we really actually implement it? I must say that we don't. So we need to create that tenet for the success of Arya Samaj, to have unity. And the last one that I would add to the 5 theoretical tenets that I first described is getting the next generation engaged. As I grew up as a child and went to Arya Samaj and kept going it in my youth and in my old age, I found very little presence in the demographics of the younger generation. So that kind of a thing that created me to suggest things like having schools that would have children brought up with the values of Arya Samaj that will carry our values forward. So those 7 things instead of 5 is what I would say are the principles of governance. With that, I'll close here and thank you for your attention. I must say, मेरे को लगता है कि आपकी तालियां विद्या जी, भूषण जी के लिए बहुत कमजोर थी. एक बार जोरदार तालियों द्वारा उनके बड़े सारगर्भित आत्मा से निकले हुए शब्दों को मैं एक एक सुन रहा था, और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल वे में एक चीज़ जो बहुत क्लियर कर दी, जो मैं करना चाहता था. जिस तरह से हमारा फ्लो चल रहा है वक्ताओं का, जिसमें हमने क्रिटिसिज्म भी सुना, जिसमें हमने समस्याओं को अलग अलग ढंग से भी समझा, which is good, but what we are looking for is something practical, something which we are way forward. हमारे पास सिद्धांतों की कमी नहीं है, सिद्धांतों की जानकारी की कमी भी नहीं है. क्या करना चाहिए ये सब जानते हैं. हमें आगे आने के लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा. तो थैंक यू डॉक्टर विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अब समय हमारे पास बहुत कम बचा है, और मैं उससे पहले कि मैं साध्वी उत्तमा जी को बुलाऊं, मैं चाहता हूं कि स्वामी मैत्री जी हमारे बीच में हैं, वो आए. 5 मिनट का उनका समय है. आशीर्वाद दें, कुछ आशीर्वाद के वचन कहिए. My Prem Namaste goes to each and every one of you. I'm Swami Maitri from Durban, South Africa. I like what the Bhaiji, the last speaker, said, that we must not only give out speeches and not do practical stuff. But here I stand telling you that I have heard Swami Dayanand's teaching only once on a radio station. And that was the day I gave up everything in my life and gave my whole life to Arya Samaj. And from that time, I'm doing full-time service. I take children out of the streets. I try to reform them. There is many, many ladies, especially widows, that go through a hard time, single women that are left alone, older ladies and people that don't have anything. I'm always there for them, and I have a whole lot that I take care of. I cook food for a lot of children. Well, I live in the heart of
African, South African people, not many Indians. And I carry out Swami Dayanand's teaching all the way. Everything that I have learned about Swami Dayanand, I am following it. So I truly don't like to preach something that I don't do. And I am always trying to compare Swami Dayanand's teaching with the African, and we are so similar in every way. So why can't we help them? So I am proud that I stand in front of all of you all to say that whatever I learned from Swami Dayanand's teaching is put into practice. So I know we are short of time here, and I'm gratefully thankful to all of you to allow me this little time. I wish I could tell you my whole life story in the township that I live. But one more thing I should leave you guys with. There's about 46,000 shacks that are around me, and I live in the heart of them, look after them. The shacks are burnt, they don't have houses, they don't have clothes, they don't have anything. But I am the mother to the whole lot. They look for me, whether it's midnight, whether it's morning, or whatever time. I am there for them. I take care that they have food, they have clothing, we shelter them. And my last 2 cases that I'm taking care of, it's sad enough that I had to leave them, is a girl raped by her own father, and the other one is raped by the neighbor. And I was so deeply involved with them and taking care, but I couldn't miss Sammelan, because this is where my life started in the past Sammelan that I came and I had initiated. Thank you so much, and my heartfelt blessing to one and all of you here. I'm so privileged to have been here for the past Sammelan and this Sammelan here. Thank you so much. Thank you, Sadhvi Maitreyi ji, Sannyasini Maitreyi ji. We appreciate your words of wisdom and sharing some of your experience. Sorry we couldn't have enough time, but hopefully we'll find one more opportunity to hear from you in next couple of days. Thank you. So I have a big announcement. Acharya Devrat ji, who is the governor of Gujarat and Maharashtra, he should be coming in next few minutes. So I'm requesting all those who are sitting in the back seats, come in the forward seat, except we want to keep the front row available for some of the security staff and the guests and acharyas. So my Karbadha Pranam to all. If we can please make the first row available for their staff and the guests, please. Any sannyasis can also be in the first 2 rows as well, and rest of you please can go to the other seats. We appreciate your consideration and support. Thank you so much for that. If you have any guests or friends outside, invite them. It is not only going to be Acharya Devrat ji, it's going to be Ramesh Bhai Dholakia. He is one of the very big supporter of the Arya Samaj and Vedic Dharma. And then our own S.K. Arya ji as well. So all 3 of them should be arriving any moment. So please, let's get prepared for that. Before we conclude this session, I'm going to invite Sadhvi Uttamayati ji for a minute to say Ashirvad, and then we will invite the next set of guests for the stage. Acharya Swami Uttamayati ji. Give her a round of applause for her presence, please. बहुत थोड़ा समय हम लोगों के पास है। सम्मानित मंच, उपस्थित आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, बहुत थोड़ी सी चर्चा थी, सोचा तो था बहुत कुछ, लेकिन 1-2 शब्दों के अंदर, 2 वाक्यों के अंदर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगी। जैसे आर्य समाज के लिए कहा है कि वैशेषिक हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मेरी बहुत सी बहनों ने और भाइयों ने अपने विचार इसके पहले प्रस्तुत किए हैं, और उन सब विचारों को यदि हम कंक्लूड करें, आपस में मिला दें, तो उसका परिणाम यही निकलेगा कि हमें, जैसे स्वामी जी ने कहा था, मेरी एक बहन ने पहले कहा, स्वामी जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और हम अब कहेंगे स्वामी जी की ओर लौटो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक गए हैं, बुरा न माने। और ख़ास करके मैं अपने बुजुर्गों से करजोर प्रार्थना करूंगी कि वो अपनी नई संपत्ति को,
आने वाली संतति को आगे बढ़ने का मौका दें और अपने आप को थोड़ा पीछे करते हुए, जैसे परिवार के अंदर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता कहते हैं ये चाबी ले, अब तू संभाल, बस यही काम हमें करना है। अपनी संपत्ति, अपनी संतति और ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी को वैसे ही सौंप देना है, बिना किसी मीन मेख के कि हम जैसे परिवार में आने वाली बहुओं को, बेटियों को अपनी सौंप देते हैं। आप इस तरह से जब अपनी संपत्ति, उस दयानंद की संपत्ति को भी अपनी आने वाली पीढ़ी पे सौंप देंगे तो हमारा आर्य समाज कहीं भी किसी भी रूप में आप सोचते हैं कहीं जाएगा। आर्य समाज सदा जीवित था, है और रहेगा, वो कभी मिट नहीं सकता। इसी के साथ आप सब लोगों को इस सम्मेलन में पधारने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी उत्तमा यति जी, समय का अनुपालन करने में सहयोग करने के लिए। तो सत्र 2 यहाँ समाप्त होता है। मनीष भाटिया जी ने धन्यवाद करना था सभी का, और मनीष जी इतने बिजी हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद। मनीष जी हमारे बहुत सारे कार्यों को संचालित कर रहे हैं और संभाल रहे हैं, तो मनीष जी के लिए भी आप लोग तालियां बजा दो भाई, क्योंकि वो बहुत काम संभाल रहे हैं। मनीष जी के लिए जी धन्यवाद।